Standard 6, Subject English, Lesson The Mouse Merchant. चूहे का सौदागर. Once a rich merchant was scolding his lazy son, "I give you so much money to start a business and yet you have not earned anything. You are good for nothing. Look at this dead mouse. A capable man can start a business even with something as useless as this." एक मर्तबा एक दौलतमंद सौदागर अपने काहिल बेटे को डांट रहा था. मैंने तुम्हें खुद का व्यापार करने के लिए इतनी सारी रकम दी और फिर भी तुमने कुछ नहीं कमाया. तुम निहायत निकम्मे हो. इस मरे हुए चूहे की तरफ देखो. कोई काबिल शख्स इस जैसे बेकार जिससे अपना व्यापार शुरू कर सकता है. सोमदत्त, who was a poor orphan boy, heard his word. He went in and requested the merchant, "Please lend me this mouse as a capital and I will try my luck." एक गरीब यतीम लड़के सोमदत्त ने उस सौदागर की बात सुनी. वो अंदर गया और उसने सौदागर से दरख्वास्त की कि मेहरबानी फरमाकर ये चूहा सरमाए के तौर पर मुझे उधार दीजिए. मैं अपनी किस्मत आजमाऊंगा. वो सौदागर कहाँ लगाकर हंसने लगा. ताहम उसने वो चूहा सोमदत्त को दे दिया और सोमदत्त की तहरीरी रसीद ले ली. The merchant burst out laughing, but still he gave the mouse to Somdatt and took the receipt that Somdatt wrote out to him. Somdatt was walking down the street with the dead mouse in his hand when another shopkeeper called him. "Come here, boy. I need the mouse to feed my cat. I will give you 2 handfuls of gram for it." Somdatt accepted the gram. मुर्दा चूहा हाथ में लटकाए सोमदत्त रास्ते से गुजर रहा था. तब एक दूसरे दुकानदार ने उसे आवाज़ दी. "ऐ लड़के, इधर आओ. मुझे ये चूहा अपनी बिल्ली को खिलाने के लिए चाहिए. मैं इसके बदले तुम्हें 2 मुट्ठी चने दूंगा." सोमदत्त ने चने लेना. At home, Somdatt roasted the gram well. Then he took a pitcher of water and stood at the crossroad with the gram and the water. He waited for a long time. सोमदत्त ने घर पर इन्हें अच्छी तरह भुना. फिर उसने पानी की एक सुराही ली और चने और पानी लेकर चौराहे पर खड़ा हो गया. उसने बहुत देर तक इंतजार किया. In the evening, when the laborers were returning from the wood, they saw the boy with roast gram and water. Somdatt offered them the gram and water politely. शाम के वक्त जब मजदूर लोग जंगल से वापस हो रहे थे तो उन्होंने भुने हुए चने और पानी लिए हुए इस लड़के को देखा. सोमदत्त ने उनको शाइस्तगी से चने और पानी पेश किए. But we have no money to stick of food. It's all we can give. लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं. हम तुम्हें सिर्फ 2 जलाऊ लकड़ियाँ दे सकते हैं. That's a good payment for this simple fare. That's a good payment for this simple fare, exclaimed Somdatt, but attempting to stick from each laborer. Somdatt collected a small bundle of sticks. He took the bundle to the market, sold it, and bought some more gram with it. इस सादा सी ग़िज़ा के लिए उम्दा अदायगी है. सोमदत्त ने खुश होकर हर मजदूर से लकड़ी के 2 टुकड़े लेकर सोमदत्त ने एक छोटा सा गड्ढा बनाया. बाजार ले जाकर उसने गड्ढा फरोख्त किया और कुछ ज़्यादा चने खरीद लिए. Somdatt did this every day. He became well known among the laborers as a nice boy who offered tasty gram and refreshing water just for a couple of sticks. Many of them began to buy his gram every day on their way back from the woods. Somdatt got several bundles of sticks every day because now he had so many customers. सोमदत्त रोजाना ऐसा करता रहा. मजदूरों में वो सिर्फ 2 लकड़ियों के बदले मज़ेदार चने और पानी देने वाला भला लड़का मशहूर हो गया.
जंगल से वापसी पर इनमें से बहुत से लोग रोज़ाना उसके चने खरीदने लगे। अब सोमदत्त को हर रोज़ लकड़ियों के कई गट्ठे मिलने लगे क्योंकि उसे बहुत से ग्राहक मिलने लगे थे। Once, when Somdat was selling the stick in the market, he met a potter. He needed wood to burn in his furnace. In return for the stick, he gave Somdat pots for his gram and a new pitcher for the water. एक मर्तबा सोमदत्त बाजार में लकड़ियाँ फरोख्त कर रहा था, तब उसे यहाँ कुम्हार मिला। उसे अपनी भट्टी में जलाने के लिए लकड़ियाँ दरकार थी। इन लकड़ियों के एवज में उस कुम्हार ने सोमदत्त को चनों के लिए मिट्टी के बर्तन और पानी के लिए कुछ सुराहियाँ दी। सोमदत्त did not waste any money. He worked hard to sell the wood in the morning and the gram in the evening. One day he had enough money to buy all the wood from the laborers. He sold it a good price in the market. After some time, he went set up his own shop in the market. सोमदत्त ने कोई पैसे ज़ाय नहीं किए। वो सुबह लकड़ियाँ फरोख्त करने में और शाम को चने फरोख्त करने में खूब मेहनत करता था। एक दिन उसके पास इन मजदूरों से सब लकड़ियाँ खरीदने के लिए पैसे जमा हो गए। उसने उन्हें बाज़ार में अच्छी कीमत में फ़रोख्त किया। कुछ अरसे बाद उसने बाज़ार में अपनी खुद की दुकान खोल ली। He was always polite to his customer. Some of them paid him cash while others paid him in kind. They gave him whatever articles they could offer. Somdat always found some way of selling the articles to those who needed them. वो अपने ग्राहकों से हमेशा इंकसारी से गुफ्तगू करता। इन ग्राहकों में बाज़ उसे नकद रकम देते थे, जबकि बाज़ लोग उसे चीज़ों की सूरत में कीमत अदा करते थे। जो अशिया वो उसे दे सकते थे दे देते थे। सोमदत्त हमेशा ऐसी चीज़ें गर्जमंद लोगों को फरोख्त करने का कोई ना कोई रास्ता तलाश कर लेता था। After a few years, Somdat became a wealthy merchant in the town. One day he asked the goldsmith to make him a small golden mouse. He took the mouse to the rich merchant. चंद वर्षों बाद सोमदत्त इस शहर का एक अमीर सौदागर बन गया। उसने एक सोनार को अपने लिए सोने का एक छोटा सा चूहा बनाने के लिए कहा। वो इस सोने के चूहे को उस दौलतमंद सौदागर के पास ले गया। I had brought a dead mouse from you as capital money many years ago. Today I have come to return it. Please accept this golden mouse. बरसों पहले मैंने आपसे सरमाए के तौर पर एक मरा हुआ चूहा उधार लिया था। आज मैं आपको चूहा वापस करने आया हूँ। मेहरबानी फरमाकर ये सोने का चूहा कबूल फरमाइए। The rich merchant was greatly surprised. He was so impressed with Somdatt's business skills that he gave him his own daughter in marriage. Though Somdat, who was poor orphan boy, earned money and respect due to his intelligence, hard work, and politeness. It is not known whether the rich man's son learned any of the skills from the Somdat. उस दौलतमंद सौदागर को बहुत ही हैरत हुई। वो सोमदत्त की ताजराना सलाहियतों से इस कदर मुतासिर हुआ कि उसने अपनी बेटी की शादी उस सोमदत्त से कर दी। इस तरह एक गरीब यतीम लड़के सोमदत्त ने अपनी जहानत, सख्त मेहनत और इंकसारी के बाइस पैसे और इज्जत दोनों कमाए। ये मालूम नहीं कि उस दौलतमंद शख्स के बेटे ने सोमदत्त से कोई हुनर सीखा या नहीं। दिस इज द स्टोरी द माउस मर्चेंट, चूहे का सौदागर, स्टैंडर्ड 6।